Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear first year. I wish and pray that everyone is doing great. Today we are going to start chapter number 15, University Days. And the theme, the idea can be implemented on every level, school level, college level and university level, because we are not going to study about the university life, the structure, the procedures of studies and lectures. We are not going to focus on this, but we will focus on a classroom environment where a teacher is trying to teach something and student is unable to get the idea. What are the reasons and what the reasons can be? We will focus on the scenario and the external problems that affect the teacher and student behavior and the learning procedure. We will focus. This chapter is written by Thurber James, but the true name is James Thurber, a famous and popular American writer and artist. James Thurber's humorous prose and drawings are never gay. हमेशा खुश नहीं होती हैं. It's not only about happiness, because their enthusiasm is dampened by melancholy. क्योंकि जो इसका जज्बा है वो उदासी में, melancholy, sadness, dampened नाम हो जाता है. His fantastic people and animals are distorted and misshapen by a malignant fate. Distorted, मसख किए गए हैं, तोड़ मरोड़ के, जैसे कि पेश करना किसी चीज़ को. And misshapen और हादसे होते हैं by a malignant fate, जो बहुत जालिम मोहलिक, समझ लें आप, जालिम सी किस्मत है. वो क्या करती है? अटैक करती है और डिस्ट्रॉय कर देती है इसके कैरेक्टर्स को और एनिमल्स को. Thurber has stated his artistic credo. Credo कहते हैं a set of rules and principles. In these words, humor is a kind of emotional chaos. Chaos किसे कहते हैं? इंतशार को, तबाही को. Emotional, जज्बाती. Talked about calmly and quietly in retrospect. Retrospect, disappointment, मायूसी. This is the definition of humor by Thurber James. He says humor is not only about happiness, but it's an emotional feeling, disaster that is quietly and calmly displayed with disappointment. This is James Thurber. Let's know something else. James Grover Thurber, this is the complete name, and dates of birth and death: December 8, 1894 and died in November 2nd, 1961, was an American cartoonist, author, humorist, journalist, playwright, and celebrated wit. He was best known for his cartoons and short stories published mainly in the New Yorker and collected in his numerous books. Thurber was one of the most popular humorists of his time and celebrated the comic frustrations and eccentricity of ordinary people. Now, what is eccentricities? पागलपन किसी का, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा जोश में हो सकता है. His works have frequently been adapted into films, including The Male Animal, The Battle of the Sexes, and The Secret Life of Walter Mitty. What is humor? Now the question is, because I am saying again and again that James Thurber is a humorist, this story is humorous. What is humor? Humor is a literary tool that makes audiences laugh or that intends to induce amusement or laughter. Its purpose is to break the monotony, boredom and tedium and make the audience's nerves relax. The writer uses different techniques, tools, words and even full sentences in order to bring to light new and funny sides of life. Humor is often found in literature, theater, movies and advertising, where the major purpose is to make the audience happy. In British English, we write as HUMOUR, and in American English, it's MOR, but you will use the spellings of MOUR. Okay? Here is an example of humor.
the snails are going on a road trip. And what is road trip? Let's go to the other end of the leaf because due to their slow movement. So let's start the translation of our chapter University Days. Listen carefully and write down the meanings and the themes as well. I passed all the other courses that I took at my university. मैं उन सारे निसाब में या उस सारे निसाब में कामयाब हुआ जो मैंने यूनिवर्सिटी में लिया. But I could never pass botany. लेकिन मैं नबातात में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सका. This was because all botany students, ये इसलिए क्योंकि तमाम बॉटनी या नबातात के तालिब इल्मों को had to spend several hours a week in a laboratory looking through a microscope. उन्हें कई घंटे लेबॉर्ट्री में गुजारने पड़ते, तज्जिया गाह में गुजारने पड़ते और खुर्दबीन से एट प्लांट सेल्स, लुकिंग थ्रू अ माइक्रोस्कोप एट प्लांट सेल्स, और खुर्दबीन से पौधे के खुलियात को देखना होता. यहाँ पर हैड टू का वर्ड आया है, आपको इसका यूज़ समझना है. हैड टू इज़ फॉर द पास्ट, हैव टू एंड हैज़ टू इज़ फॉर द प्रेजेंट. दे बोथ आर यूज फॉर कंपल्शन. बहुत कोई चीज़ जो मैंडेटरी है, आप उस बाउंड हो वो करने के लिए, वहाँ आप ये यूज़ करते हो. अब क्या कहता है, द रीज़न वाई ही कुडंट पास द बॉटनी सब्जेक्ट, ये इसलिए था कि नबातात के तमाम तालिब इल्मों को तज्जिया गाह में कई घंटे खुर्दबीन में से पौधों के खुलियात देखते हुए गुजारने पड़ते. आई कुड नेवर सी थ्रू अ माइक्रोस्कोप, और मैं कभी भी खुर्दबीन में से नहीं देख सका. आई नेवर once saw a cell through a microscope. मैंने कभी भी खुर्दबीन में कोई खुलिया नहीं देखा. ऐसा नहीं कि वो ट्राई नहीं कर रहा था. He was trying to see but he couldn't. This used to enrage my instructor. ये मेरे हिदायतकार को गुस्सा दिला देता, टीचर जो वहाँ पर है, क्योंकि वो वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है how to use microscope. He would wander around the laboratory. वो तज्जिया गाह में घूमा करते. Pleased with the progress, तरक्की से खुश होते. All the students were making in drawing the involved, जो उसमें शामिल तमाम, या आप ऐसे कह सकते हो उसमें जो उसमें शामिल थे और उनकी तस्वीरें बनाते. वो तज्जिया गाह में इधर उधर घूमा करते और वहाँ शामिल तालिब इल्मों की तरक्की से खुश होते जो तस्वीरें बनाया करते. किसकी तस्वीरें? जो वो माइक्रोस्कोप में देखते हैं. एंड सो आई एम टोल्ड, जैसा कि मैं बताता, इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर सेल्स. क्या बनाते वो? दिलचस्प स्ट्रक्चर साख्त ऑफ फ्लावर सेल्स, फूल के खुलियात की, जो फूल के खुलियात की दिलचस्प साख्त बनाते. Until he came to me, यहाँ तक कि वो मेरे पास आते. I would be just standing there. मैं सिर्फ वहाँ पे खड़ा होता. I can't see anything, I would say. मैं कहता मैं कुछ नहीं देख सका. He would begin patiently enough. वो काफ़ी सब्र से दोबारा शुरू करते. Explaining how anybody can see through a microscope. वजाहत करते कि कोई भी कैसे खुर्दबीन में देख सकता है. But he would always end up in a fury. लेकिन वो हमेशा गुस्से में इख्तिताम करते. Claiming that I could too see through a microscope. वो ये दावा करते हुए हमेशा गुस्से में बात का इख्तिताम करते कि मैं भी खुर्दबीन से देख सकता हूँ. But just pretended I couldn't. सिर्फ दिखावा करता हूँ कि नहीं देख सका. This is really important for teachers. उन्हें समझना चाहिए कि बच्चा हमेशा लेम एक्सक्यूज़ नहीं बनाता. There are some unavoidable reasons and features that can affect the learning of the student. It takes away the beauty of flowers anyway. I used to tell him. मैं उन्हें बताया करता कि ये फूलों की सारी खूबसूरती ले जाती है. कौन? माइक्रोस्कोप. We are not concerned with beauty in this course. हम इस निसाब में खूबसूरती से ताल्लुक़ नहीं रखते. This is not literature, this is botany. क्या कहते हैं? हम इस निसाब में खूबसूरती से ताल्लुक़ नहीं रखते. We are concerned solely. हमारा सिर्फ ताल्लुक़ है with what I may call the mechanics of flower. जिसे मैं कहता हूँ फूलों के कारीगर. कारीगर उसके एक एक पार्ट को डिफरेंट सेपरेट करके देखने वाले, बनाने वाले. हमारा ताल्लुक़ सिर्फ उसी से है जिसको मैं फूलों के कारीगर कहता हूँ. Well, I would say, ठीक है, मैं कहता I can't see anything. मैं कुछ नहीं देख सका.
ट्राई इट जस्ट वंस अगेन, he'd say, वो कहते सिर्फ एक बार और कोशिश करो। एंड आई वुड पुट माई आई टू द माइक्रोस्कोप, और मैं खुर्दबीन पर अपनी आँख रख देता। एंड सी नथिंग एट ऑल, और कुछ नहीं देख पाता। एक्सेप्ट नाउ एंड अगेन, वही सिवाय बार बार, अ नेबुलस, एक धुंधला, मिल्की सब्सटेंस, एक दूधिया माइल मादा, सिवाय मैं बार बार एक धुंधला दूधिया माइल या सफ़ेद मादा देखता। फिनोमिनन ऑफ मेल एडजस्टमेंट, और ये सिर्फ ख़राबी की वजह से था। मेल एडजस्टमेंट ख़राबी, फिनोमिनन वैसे रुझान को कहते हैं, और यही ख़राबी का रुझान था। यू वर सपोज टू सी विविड, अब ये क्या बता रहा है कि ये कोर्स बॉटनी क्या सपोज करता था, डिमांड करता था आपसे। यू वर सपोज टू सी विविड, आप वाजे, रेस्टलेस, बेचैन, क्लॉकवर्क, बिल्कुल ठीक, शार्पली डिफाइंड प्लांट सेल्स, बिल्कुल ठीक बयान शुदा पौधों के खुलियात देखने का तकाजा करते थे, या आपसे मुतालबा किया जाता था। आपसे मुतालबा किया जाता था कि आप बिल्कुल ठीक शक्ल के बेचैन और वाज़े पौधों के खुलियात को देखें। अब रेस्टलेस क्यों कहा, क्योंकि वो मूव करते हैं ना। आप बॉटनी पढ़ेंगे अगर बायो में, तो आप देखेंगे माइक्रोस्कोप में। आई सी व्हाट लुक्स लाइक अ लॉट ऑफ मिल्क, मुझे क्या दिखाई देता, जैसे बहुत सारा दूध हो। आई वुड टेल ही, मैं उन्हें बताता। दिस ही क्लेम्ड, और वो दावा करते, वॉज द रिजल्ट ऑफ माई नॉट हैविंग एडजस्टेड द माइक्रोस्कोप प्रॉपरली, वो ये दावा करते कि ये ऐसा इसलिए, या ये उसका नतीजा है कि मैंने खुर्दबीन को ठीक से सेट नहीं किया या दुरुस्त नहीं किया। सो ही वुड एडजस्ट इट फॉर मी और रादर फॉर हिमसेल्फ, और वो उसे मेरे लिए या फिर अपने लिए ठीक करते। एंड आई वुड लुक अगेन एंड सी मिल्क, और मैं दोबारा देखता और दूध देखता। क्या उसे नज़र आता, एक दूधिया माइल से सफ़ेदी बस नज़र आती। आई फाइनली टुक अ डेफर्ड पास, जैसे फ्रीज़ करते हैं सेमेस्टर्स को ना। आखिरकार मैंने कुछ मुलतवी अरसा गुजारा, एज दे कॉल्ड इट, जैसा कि वो उसे कहते थे। एंड वेटेड अ ईयर एंड ट्राइड अगेन, और एक साल इंतज़ार किया, फिर कोशिश की। यू हैड टू पास वन ऑफ द बायोलॉजिकल साइंसेस और यू couldn't ग्रेजुएट। अब ये कंपल्शन बता रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, वहाँ पर जो रूल था, यू हैड टू पास, आपको कामयाबी हासिल करनी होती, वन ऑफ द बायोलॉजिकल साइंसेस, हयातियाती साइंस में से किसी एक में, और यू couldn't ग्रेजुएट, वरना आप फारिगुल तहसील नहीं होते। आपको हयातियाती साइंस में से किसी एक पर कामयाबी हासिल करनी होती, वरना आप फारिगुल तहसील नहीं होते। द प्रोफेसर हैड कम बैक फ्रॉम वेकेशन, प्रोफेसर छुट्टियों से वापस आए थे। ब्राउन एज ए बैरी, एक बैरी की तरह, ब्राउन क्या होगा, भूरे दिखाई देते, फ्रेश, ब्राइट आइड, रोशन आंखें, एंड ईगर टू एक्सप्लेन, और पुरजोश थे, टू एक्सप्लेन, बयान करने के लिए, सेल स्ट्रक्चर, क्या, खुलिये की साख्त, अगेन टू हिज क्लासेस, अपनी जमात से दोबारा। प्रोफेसर छुट्टियों से वापस आए थे और एक बैरी की तरह भूरे दिखाई देते थे, रोशन आंखें, और अपनी जमात को खुलिये की साख्त बयान करने के लिए पुरजोश थे। वेल ही सेड टू मी, उन्होंने मुझे कहा चीयरली, खुशी से, व्हेन वी मेट इन द फर्स्ट लेबॉर्ट्री आर दैट सेमेस्टर, जब हम उस शशमाही में, सेमेस्टर इज़ अ टेन्योर ऑफ 6 months, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 3 months का भी करती हैं, लेकिन सेमेस्टर 6 months का ही होता है, मीनिंग अगर देखें तो उन्होंने खुशी से मुझे कहा, जब मैं उस शशमाही में पहली बार उन्हें तज्जिया गाह में मिला, वी आर गोइंग टू सी सेल्स दिस टाइम आंट वी, इस बार हम खुलियात देखने वाले हैं, क्या हम नहीं देखने वाले? यस सर, आई सेड, मैंने कहा जी जनाब। Students to the right of me and left of me and in front of me were seeing cells. मेरे दाएं जानिब, बाएं जानिब और सामने की जानिब के तालिबे इल्म खुलियात देख रहे थे। What's more, they were drawing pictures of them in their notebooks. मज़ीद ये कि वो अपनी कॉपी में उसकी तस्वीरें भी बना रहे थे। Of course, I didn't see anything. बेशक मैंने कुछ नहीं देखा। We will try it, the professor said to me grimly, सख्ती से। प्रोफेसर ने मुझे सख्ती से कहा, या उस्ताद ने मुझे सख्ती से कहा, ठीक है हम कोशिश करेंगे। With every adjustment of the microscope known to man,
हर तरह से इसको ठीक करेंगे या खुर्दबीन को हर तरह से ठीक करेंगे जो कोई आदमी जानता है। एज गॉड इज़ माई विटनेस, जैसे कि खुदा मेरा गवाह है। नेक्स्ट पेज पर, I'll arrange this glass so that you see cells through it. मैं इस शीशे को ठीक करूँगा ताकि इसमें से तुम खुलियात देख सको। और I will give up teaching, या मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा, तर्क कर दूँगा। उस्ताद ने सख्ती से कहा, ठीक है हम कोशिश करेंगे, हर तरह से खुर्दबीन को ठीक करेंगे जितना कि कोई इंसान जानता है। खुदा मेरा गवाह है, मैं इस शीशे को ठीक करूँगा ताकि तुम इसमें से खुलियात को देख सको, या मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा। इन 22 years of botany आई, नबातात के 20 साल में, 22 साल में मैं, ही कट ऑफ एब्रप्टली, उन्होंने तेज़ी से बात काट दी। फॉर ही वॉज बिगिनिंग टू क्विवर, क्योंकि वो कांपना शुरू हो गए थे गुस्से से शायद। लाइक लायनल बैरेमोर, एंड ही जनरली विश टू होल्ड ऑन टू हिज टेम्पर, और वो हकीकतन खुद को काबू करना चाहते थे या अपने गुस्से को काबू करना चाहते थे। गुस्से से कांपना शुरू हो गए वो। His scenes with me had taken a great deal out of him. उनके तमाम मनाजिर मेरे साथ बहुत सी तवानाई ले जाते थे। Great deal out of him, उनकी बहुत सारी तवानाई ले जाते थे। So we tried it with every adjustment of the microscope known to man. फिर हमने खुर्दबीन की हर तरह से दुरुस्तगी की कोशिश की जैसे कोई इंसान कर सकता है। With only one of them did I see anything but blackness. सिर्फ उनमें से एक में जिसमें मैं देख सकता था सिर्फ स्याही दिखाई दी। और द फेमिलियर लैक्टियल ओपेसिटी, लैक्टियल दूधिया माइल, ओपेसिटी धुंधलापन। क्या कहता है? और मैं उनमें से जिसमें एक देख सका स्याही या दूधियापन, सफ़ेदी। एंड दैट टाइम आई सॉ टू माई प्लेजर, उस टाइम पे मैंने देखा, टू माई प्लेजर, अपनी खुशी के लिए, एंड अम्यूज़मेंट और तफरी के लिए, आ वेरीगेटेड, बहुत सी इकसाम के, कॉन्स्टेलेशन, झुरमट, और फ्लैक्स, टुकड़े देखे, स्पेक्स, छींटें देखी, एंड डॉट्स, और नुक्ते देखे। फिर मैंने अपनी खुशी और तफरी के लिए वहाँ कई इकसाम के टुकड़ों, छींटों और नुक्तों के झुरमट देखे। These I hastily drew, जिनको मैंने तेज़ी से बना दिया। किस में बना दिया? कॉपी पर। The instructor, हिदायतकार, noting my activity, मेरी सरगर्मी को देखते हुए, came from an adjoining desk, जुड़े हुए या उससे मुल्हिक मेज से मेरी तरफ आए। A smile on his lips, होंठों पर मुस्कुराहट थी। Eyebrows high in hope, और भवें उम्मीद से उठ चुकी थी या ऊपर को उठ गई थी। He looked at my cell drawing, उन्होंने मेरे खुलिये की तस्वीर को देखा। What's that? He demanded. अब उन्हें लगा इसको सेल नज़र आ गया और ये इसकी ड्राइंग बना रहे हैं, लेकिन इसको सिर्फ कलर्स नज़र आए डिफरेंट, और एक झुरमट सा जिसमें कुछ टुकड़े थे, छींटें और नुक्ते वगैरह, वो सारे नज़र आए। तो उन्होंने कहा कि ये शायद ड्राइंग बना रहा है। आकर देखा तो क्या था? अच्छा जी, हिदायतकार ने मेरी सरगर्मी को देखा और उससे मुल्हिक मेज से मेरी तरफ आए। होंठों पर मुस्कुराहट थी और उम्मीद में भवें उठ चुकी थी। उन्होंने मेरे खुलिये की तस्वीर को देखा और मुतालबा किया कि ये क्या है। विद अ हिंट ऑफ स्क्वील, हिंट एक इशारा दिया, स्क्वील चीख का, इन हिज वॉइस, मतलब जैसे आवाज़ को चीखने वाली आवाज़ के साथ मुझसे पूछा ये क्या है। आवाज़ में चीख के इशारे के साथ मुझसे मुतालबा किया ये क्या है। दैट्स व्हाट आई सॉ, आई सेड, मैंने कहा वही जो मुझे नज़र आया। यू डिडंट, यू डिडंट, यू डिडंट, तुम नहीं, तुम नहीं। ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाए, लूजिंग कंट्रोल ऑफ हिज टेम्पर। इंस्टेंटली, अचानक अपने गुस्से पर काबू खो बैठे। एंड ही बेंट ओवर एंड स्क्विंटेड इनटू द माइक्रोस्कोप, और फिर झुके और नज़र टेढ़ी करके खुर्दबीन में देखा। हिज हेड स्नैप्ड अप, अचानक उनका सर ऊपर को उठ गया। दैट्स योर आई, ये तुम्हारी आँख है। ही शाउटेड, वो चिल्लाए, यू हैव फिक्स्ड द लेंस, तुमने अदसा लगाया हुआ है, हैंड के साथ होगा, सो दैट इट रिफ्लेक्ट्स, और ये उसी ने अक्स डाला। यू हैव ड्रॉन योर ओन आई, तुमने अपनी ही आँख की तस्वीर बना डाली।
आई होप यू विल एंजॉय दिस चैप्टर जब आप खुद से पढ़ेंगे. ओके गर्ल्स, अब आपने क्या करना है, यू विल कंप्लीट दिस ग्लॉसरी वर्ड्स, यू विल राइट डाउन द मीनिंग्स. आई हैव told you the meanings of all these words in your chapter. While translating, you will write down the meanings and then underline the glossary words, the synonyms. And let's now discuss the comprehension. Compare Thurber's approach to seeing the seller flower with that of his teacher and other students. Is he, in your view, making fun of himself, other students, or of teacher's ways of instruction? Explain. अब आपने explain करना है कि क्या वो मजाक बना रहा था अपना स्टूडेंट्स का या टीचर के पढ़ाने के अंदाज का. तो आपने बताना है नो, ही वॉज डूइंग ऑल दिस अनकॉन्शियसली. क्योंकि अब देखें जो रीजंस होती हैं ना, कुछ जब आप ये देखते हो ड्यूरिंग लर्निंग देयर आर सर्टन एलिमेंट्स दैट डिस्ट्रैक्ट यू, दैट मेक्स ट्रबल फॉर यू, एंड द रीजंस, द एलिमेंट्स कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल क्या होते हैं, जब आपको नींद आ रही हो, यू आर नॉट फीलिंग वेल, आप बीमार हो, हेडेक है या कोई टेंशन है, वो आपके इंटरनल एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है. कुछ होते हैं एक्सटर्नल एलिमेंट्स, कोई बहुत ज़्यादा शोर आ रहा हो, बहुत तेज़ हवा चल रही हो, शदीद गर्मी और शदीद सर्दी में से कुछ हो, या कोई ऐसी एक्सटर्नल आपके बाहर इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ सिचुएशन हो कि आप लर्निंग नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो आपने बताना है यहाँ पर एक्सटर्नल एलिमेंट्स का कि उनमें कोई प्रॉब्लम थी जो वो फिक्स नहीं कर पा रहा था. फिर आप ये बता सकते हो कि उसकी आई साइट में ये प्रॉब्लम थी, उसके लेंस की वजह से, जो वो नहीं ड्रॉ कर पाता था और देख ही नहीं पाता था. ठीक है. तो यहाँ पर आप इस चीज़ को एलेबोरेट करोगे. ही वॉज नॉट मेकिंग फन ऑफ एनीबडी, ऑफ हिमसेल्फ, ऑफ अदर स्टूडेंट्स और द टीचिंग वेज ऑफ द इंस्ट्रक्टर. लेकिन आपने बताना है इट वॉज ऑल अबाउट ड्यू टू अनकॉन्शियस एलिमेंट्स दैट वर अनअवॉइडेबल एंड अनकंट्रोलेबल फॉर द राइटर. सेकेंड क्वेश्चन है, जेम्स थर्बर गिव्स अ ग्रेट डील ऑफ डिस्क्रिप्टिव डिटेल इन हिज एसे यूनिवर्सिटी डेज. व्हाट सेंसेस डज द डिस्क्रिप्शन अपील टू. अब डिस्क्रिप्शन है बहुत डिटेल से, आपने बताना है आपको ये कैसे फील हुई. हाउ डज दिस डिटेल मेक अस फील एंड कनेक्ट विद एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर. हमें ऐसा लगा ना विद एवरी इंच जो उसने डिटेल दी है, आई वॉज फीलिंग दैट आई एम इन दैट क्लासरूम, I am the student or maybe I am the teacher and I was feeling all the situation and feelings because उसने इतनी डिटेल से सारी चीज़ें बताई हैं. स्टूडेंट्स की एक्टिविटी बताई, वो क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर की बताई, when he was roaming in class, he was wandering in class, वो सारा उसने बताया. तो आपने बताना है there is each and every detail that there is a descriptive imagery in front of us and we were feeling to see the situation and scene itself. तो ये आपने इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है कि इतनी जो डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्टिव, उनसे आपको क्या फील हुआ और आपको कैसे ये लगा कि आप कनेक्टेड हैं. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द थीसिस ऑफ द यूनिवर्सिटी डेज. इज इट स्टेटेड और एम्प्लॉयड. थीसिस क्या होता है, सबसे पहले एक स्टेटमेंट होती है जिसे आप लेकर चलते हैं प्रूफ या निगलेक्ट या डिनाई करने के लिए. ठीक है. थीसिस में आप कोई एक स्टेटमेंट पिक कर लेते हैं, उस पर आप काम करते हैं, आप उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट करते हैं और लास्ट में आप उसको प्रूव या डिनाई कर देते हो. तो ये तो हो गया थीसिस के क्या होता है. अब इसका थीसिस आपने बताना है कि क्या है. ठीक है. इज इट स्टेटेड और एम्प्लॉयड. अब स्टेटेड क्या होता है, स्टेटेड थीसिस ऐसा होता है जिसमें उसकी जो स्टेटमेंट है, जो आपका क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, वो इंट्रोडक्शन में ही एक्सप्लेन कर दी जाती है. रीडर को सारा इन्वॉल्व किया जाता है उस स्टेटमेंट में, टोन और सिचुएशन, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें क्लियर की जाती हैं. ठीक है. स्टेट देखें ना, स्टेट मीन्स टू एलैबोरेट समथिंग. ठीक है. तो वो जब आप बयान करते हो तो वो स्टेटेड थीसिस होगा. अब इसका आपने बताना है कि क्या है. आपने बताना है कि क्लासरूम इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है और the hurdles in the way of learning for student and hurdles in the way of teaching for in terms of teacher. अगर हम देखें तो आपने ये बताना है कि इसका ये थीसिस क्वेश्चन है. प्रॉब्लम समझ लें जो है हमारी स्टेटमेंट, सबसे पहले आप वो डिफाइन करोगे, फिर आपने बताना है कि ये स्टेटेड थीसिस है हमारा
क्योंकि उसने इंट्रोडक्शन में ही हमें सारी प्रॉब्लम भी बता दी, ठीक है, उसने रीडर को इन्वॉल्व भी रखा, उसने बैकग्राउंड भी हमें सारा समझा दिया, और फिर उसके बाद उसने हमें डिटेल्स दी और लास्ट में वो फाइनल कंक्लूजन तक चला गया। इम्प्लाइड में क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं की जाती, हमें खुद से अस्यूम करनी पड़ती है, प्रॉब्लम और स्टेटमेंट हमें समझनी पड़ती है कि ये जो एक डिटेल्ड ऐसे है ये हमें बताना क्या चाहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेटेड थीसिस होगा यूनिवर्सिटी डेज़ में, क्योंकि सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। व्हाट इज़ द इम्प्लाइड मैसेज ऑफ यूनिवर्सिटी डेज़। इम्प्लाइड मैसेज अब क्या होता है, इम्प्लाइड का मतलब हिंट, जैसे कि मैंने अभी थीसिस में भी आपको बताया। तो इसमें हिंट मैसेज क्या दिया गया। अब अगर हम देखें सरफेस लेवल पर, तो ह्यूमरस एक स्टोरी है, सीन है क्लासरूम का, जिसमें स्टूडेंट अनेबल है कि वो कुछ सीख सके और सेल का स्ट्रक्चर देख सके, माइक्रोस्कोप यूज़ कर सके, रीज़न एंड पे जाकर क्या निकलती है। लेकिन इसका जो इम्प्लाइड मैसेज है वो बहुत ज़्यादा डीप है स्टूडेंट्स के लिए एंड टीचर्स के लिए, कि उन्हें सारे एलिमेंट्स को समझना होगा जो हर्डल क्रिएट करते हैं इन द वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। वाई वॉज द इंस्ट्रक्टर इरिटेटेड विथ हब। तो आपने बताना है डेफिनेटली कि उसकी किसी बात का असर नहीं हो रहा, इतने टाइम के बाद भी वो आया है, 1 साल का स्टे लेकर भी, तब भी उसे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, माइक्रोस्कोप में से कुछ भी, तो वो इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उसकी इंस्ट्रक्शंस पर जब बाकी सारे स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं, और ये टीचर जो इंस्ट्रक्टर है वो अपना 100% भी दे देता है, तब भी वो चीज़ उसको हासिल नहीं हो रही है, तो वो इरिटेट हो जाता है फिर, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपने मुझे नेक्स्ट क्लास से पहले वेडनेसडे मॉर्निंग तक टिल 8 o'clock इन द मॉर्निंग आपने मुझे ये पिक्चर्स अपनी सेंड करनी होंगी नोटबुक में से। ये आपके टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, बहुत शॉर्ट है। टेक्स्ट पर मीनिंग लिखें, थीम्स लिखें, ग्लोसरी वर्ड्स को कंप्लीट करें। टिल नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।